کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے بدلتے موسم کی۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے بعد حبس کی شدت میں اضافہ، ہوا میں نمی کا تناسب 71% تک جا پہنچا۔ حبس کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری۔ محکمہ موسمیات کی 17 جولائی تک وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں ہلکی بوندا باندی جاری ہے، جس کے باعث یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آسمان پر تاحال بھی بادل موجود ہیں، مگر حبس کی جو شدت ہے وہ برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 17 جولائی تک وقفے سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ البتہ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوائیں چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل طور پر تھم چکا ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رواں ہفتے بھی جو ہے وہ وقفے سے بارش برسے گی، تاہم شہری احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ آج ہوا میں نمی کا تناسب 71% تک جا پہنچا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ باہر سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ شہری بھی پسینے سے شرابور ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ آج جو ہے وہ پورا دن یہی دیکھا جائے گا کہ شہر لاہور میں وقفے سے ہلکی بوندا باندی بھی ریکارڈ کی جائے گی، مگر حبس کی شدت بھی برقرار رہے گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ پی ٹی آئی کے 26 اراکین کی نااہلی ریفرنس کا معاملہ، حکومت اور اپوزیشن کمیٹیوں کی آج ملاقات شیڈول۔ پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ سپہر 4 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ اسپیکر ملک احمد خان دوسرے سیشن کی صدارت کریں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے کمیٹی کے لیے تاحال اسمبلی سیکریٹریٹ کو نام نہیں بھجوائے گئے۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے حمزہ۔ ہاں جی بالکل سامہ، پی ٹی آئی کے 26 ارکان کی نااہلی کے ریفرنس کا معاملہ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ اور مذاکراتی میٹنگ کا دوسرا سیشن آج ہوگا، جبکہ مذاکرات کے لیے دوسرے سیشن کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے، جبکہ پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ آج دوپہر 4 بجے ہوں گی۔ جبکہ اپوزیشن کی جانب سے کمیٹی کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کو ابھی تک نام نہیں بھجوائے گئے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر حکومتی کمیٹی کی تشکیل دے دی گئی ہے۔ حکومتی کمیٹی میں ممبرز میں وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، سمیع اللہ خان، رانا محمد ارشد، وزیر صنعت چودھری شاکر حسین، جبکہ سید علی حیدر کنانی، چودھری افتخار چچڑ، لہیدہ خادم حسین، امجد علی جاوید، احمد اقبال اور شعیب صدیقی شامل ہیں، جبکہ ابھی تک اپوزیشن کے ناموں کا انتظار ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ چون مارکیٹ میں چینی کے دام مسلسل بڑھنے لگے۔ صوبائی دارالحکومت میں چینی کی فی کلو قیمت 210 روپے تک جا پہنچی۔ ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو چینی کا تھیلا 9200 روپے کا ہو گیا۔ چینی کی بڑھتی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ آج بالکل چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تمام تر حکومتی اقدامات، حکومتی دعوے اور حکومتی میٹنگز کے باوجود مارکیٹ میں چینی جو ہے اس وقت 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں قیمتیں بھی مختلف ہیں، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں جو چینی کی تھوک پرائس ہے یا جو ہول سیل پرائس ہے وہ بھی مسلسل اس میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 9100 روپے کا 50 کلو کا تھیلا جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ قیمتیں کس طرح کم ہوگی، کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت مرکزی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر طاہر ثقلین بٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بٹ صاحب یہ بتائے گا کہ پہلے ایکسپورٹ اب امپورٹ، یہ کیا معاملہ ہے؟ چینی شہریوں کو سستی کیسے ملے گی؟ شہریں سستی چینی کیسے ملے گی؟ پہلے تو انہوں نے کہا جی ہم کریں گے ایکسپورٹ کریں گے، ڈالر آئیں گے۔ یہ مل والوں نے یقین دہانی کرائی وزیر اعظم صاحب تو مان نہیں رہے تھے۔ بہرحال بعد میں مان گئے، تو جب ایکسپورٹ ہوئی، باہر چلے گی چینی، ڈالر آئے، اب امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا مسئلہ ماجرا ہے اس ملک کا، کیا ان کے پاس کیا کوئی وسائل کیا ہیں یا کیا ان کی جب انہوں نے ایکسپورٹ شروع کی کہ جی ہم نے ایکسپورٹ، اس میں 132 روپے چینی ریٹیل میں بک رہی تھی ریٹیل میں۔ تو جب ایکسپورٹ کا انہوں نے کام شروع کیا تو دن بدن ڈیلی ریٹ 200-300 روپے بیگ باہر آتا ڈیلی۔ تو پھر بھی ہم نے واہ بیلا کیا، دسمبر سے لے کر واہ بیلا شروع کر دی کہ چینی 200 روپے کلو ہو جانی ہے، کیونکہ 5 ایکسرسائز پاکستان میں ہوئی تھی اس سے پہلے، تو ہمیں علم ہو گیا تھا یہ چینی اب ٹھہرے گی نہیں اس ریٹ پہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چلو مہنگی ہوگی چینی، اور بھائی مل انہوں کو پکڑو نا جنہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہم 1-2 بیگ لیتے ہیں، کلو چینی بیچتے ہیں، تو جتنا کریکڈ ہونا وہ لاہور یا اضلاع میں جتنے بھی اضلاع ہیں یا پاکستان میں وہ ہوتا ہے پرچون فروشوں پہ کہ آپ مہنگی بیچ رہے ہو۔ بھائی ہمارا دماغ پاگل ہے کہ ہم ایک چیز 120 روپے تو 200 روپے کلو بک سکتی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے FBR والے گھی ملوں پہ بٹھائے ہوئے نا آپ نے،
इनके मिलों वाले की बिठाएं, आपको पता चल जाएगा कौन से दुकानदार है, स्टेक होल्डर जिनकी चीनी है, कौन से इन्वेस्टर है। अब पता ही नहीं चलता कि जूतियाँ बनाता उसकी चीनी ली हुई है, जो लकड़ का काम कर रहा है उसके पास चीनी है, जो सोने का गोल्ड का काम उसके पास भी चीनी पड़ी हुई है, वो उन्हें डीओ लिए हुए हैं। हमें ये समझ नहीं लग रही कि यार हमारी हुकूमत है, आप पता करें कि चीनी का क्या मसला है। अभी चीनी क्यों पूछ ही कोई नहीं रहा, चीनी 9100 का बैग हो गया, तो अब क्या करेंगे, क्रैकडाउन नीचे से शुरू कर देंगे, होलसेलर को पकड़ेंगे, रिटेलर को पकड़ेंगे। ये जी हम यार मिल वालों को पकड़ो भाई, जो मेन हेड है उससे पकड़ें। जी बिल्कुल, जब तक जो है वो जो मेन जो किरदार हैं चीनी की कीमतें बढ़ाने वाले उनको नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक चीनी जो है वो सस्ती नहीं होगी। और ये भी कहना है करियाना मर्चेंट्स का कि दुकानदारों पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाता है, लेकिन जो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो है वो इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और उनका मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको कोई नहीं जो है वो पूछ रहा है। सिर्फ करियाना दुकानदारों पर छापे मारे जाते हैं। और ये भी दुकानदारों की जानिब से कहा गया कि अगर चीनी सस्ती करनी है तो जो चीनी महंगी करने के असल किरदार हैं उन पर हाथ डाला जाएगा, तो चीनी खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। जी आपका शुक्रिया। छुट्टी के रोज़ गिरा फरोशों को भी खुली छुट्टी। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। टमाटर और आलू 100, प्याज 70, लहसुन 350, अदरक 600 रुपये किलो फ़रोख्त। ब्रायलर माफिया भी बेलगाम। मुर्गी का गोश्त मजीद 15 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 577 रुपये तक जा पहुँची। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं, बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में एक मरतबा फिर महंगाई का पहिया तेजी से घूमता हुआ नजर आ रहा है और अशियाए ज़रूरिया जिसमें सब्जी और ब्रायलर गोश्त वगैरह शामिल है, उनकी कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखा जा रहा है। आज भी यही सूरत हाल है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में गुज़श्ता चंद रोज से बड़ा इजाफा रोजाना की बुनियाद पर होता है। आज भी इसमें 15 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त मजीद महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 570 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है, जो कि काफी ज्यादा ख्याल की जाती है। इसी तरह जो फार्मी अंडे हैं उनकी कीमत में भी 1 रुपये फी दर्जन आज मजीद इजाफा हुआ है और 255 रुपये फी दर्जन फार्मी अंडों की कीमत जा पहुंचे। इन दोनों अशिया की कीमतों में गुज़श्ता चंद रोज में मुसलसल तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। सब्जी की सूरत हाल भी इसी किस्म की है। सब्जी की कीमत जो कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से एक जगह पर ठहरी नजर आ रही थी, अब उसमें रोजाना की बुनियाद पर तेजी देखी जा रही है। आज टमाटर की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद 75 रुपये फी किलो इसकी सरकारी कीमत मुकर्रर हुई है। ताम मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह आलू का सरकारी निर्ख 85 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि मार्केट में कम से कम 100 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। प्याज का सरकारी निर्ख 50 रुपये फी किलो बरकरार है और यह मार्केट में 60 से 70 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन चाइना 260 की बजाय 350 रुपये बेचा जा रहा है। अदरक चाइना 475 सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में 600 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं जो रोजाना की बुनियाद पर पकाई जाती हैं, उनकी कीमतें भी काफी तेजी देखी जा रही है। भिंडी कम से कम 200 रुपये फी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, जबकि घिया कद्दू की कीमत कम से कम 280 से 300 रुपये फी किलो इस वक्त देखी जा रही है और शिमला मिर्च 160 से 180 रुपये फी किलो है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज से जो बारिशों का एक स्पेल चला हुआ है, जिसकी वजह से जो फसल होती है सब्जियों की वो खासी हद तक मुतासर होती है, सप्लाई भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से मार्केट में सब्जियों की सप्लाई कम आ रही है और इसी बुनियाद पर इसकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। खदशा यही है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमत में मजीद इजाफा भी होगा। जी आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुतहर्रिक कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़ज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फैसला। माहौलियाती हिफाजती इंतजाम के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और मज़बा खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुतहर्रिक कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़ज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फ़ैसला। माहौलियाती हिफाजती इंतजाम के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और मज़बा खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन से चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का EV सेक्टर, सोलर पैनल, मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। चौधरी शाफ़े हुसैन का कहना था कि पंजाब को सरमायाकारों के लिए पुरकश मुकाम बना दिया गया है, जबकि चीन और जापान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियाँ अरबों रुपये की सरमायाकारी कर रही हैं। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन से चीन की IBI इंटरनेशनल ग्रुप के वफ़द ने पैसिफिक हाउस में मुलाकात की। सरमायाकार ग्रुप के चेयरमैन इब्राहिम मुनीर वफ़द की क़यादत कर रहे थे। चीन की IBI इंटरनेशनल ग्रुप का EV सेक्टर, सोलर पैनल, मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट टू
एनर्जी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। हमारा ग्रुप पंजाब में मुकामी सरमायाकारों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर सकता है। पंजाब को मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुकाम बना रहे हैं, ये कहना था सूबाई वजीर का। चीन और जापान में मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं। चीन की IBI इंटरनेशनल ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। चीन के ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पंजाब में EV सेक्टर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। पंजाब के खुसूसी इक्तिसादी जोन में सरमायाकारी पर खुसूसी मुराद दी जा रही है। इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले मुआवजे का खात्मा कर दिया। इंडस्ट्रियल स्टेट में बरसों से जारी प्रॉपर्टी का कारोबार बंद करवा दिया है। अब इंडस्ट्रियल स्टेट में हासिल किए गए प्लाटों पर सिर्फ कारखाने ही लगेंगे। नई फैक्ट्रियां लगने से लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से नई पॉलिसी लाई जा रही है। इंडस्ट्रियल स्टेट में सनअतकारी के अमल को तेज करने के लिए प्लाटों की कीमतों में कमी की जा रही है। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गवर्नमेंट सिटी, फार्मास्यूटिकल वैली और सियालकोट में सर्जिकल सिटी बन रहा है। चौधरी शाफी हुसैन IBI इंटरनेशनल ग्रुप के डायरेक्टर कासिम कमाल, मुकामी सनअतकार अमजद रशीद, एहसन रशीद, राना खालिद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। नर्सिंग कॉलेज जनरल हॉस्पिटल में नई तालिबात की तकरीब हल्फबरदारी। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज रुबीना इनाम ने तालिबात से दुखी इंसानियत की खदमत और पेशे से वफादारी का हल्फ भी लिया है। नर्सिंग कॉलेज जनरल हॉस्पिटल में नई तालिबात की तकरीब हल्फबरदारी। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज रुबीना इनाम ने तालिबात से दुखी इंसानियत की खदमत और पेशे से वफादारी का हल्फ भी लिया है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज जनरल हॉस्पिटल में नई तालिबात की तकरीब हल्फबरदारी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, नर्सिंग कॉलेज जनरल अस्पताल में नई तालिबात की हल्फबरदारी, खिदमत इंसानियत का आज़म। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज और बिना इनाम ने तालिबात से दुखी इंसानियत की खिदमत और पेशे से वफादारी का हल्फ भी लिया। डिप्टी चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट फजीला लाल, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट पिंस आसिया खानम और दीगर नर्सेज की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फारूक अफजल का ये कहना था कि जामिया मुतालिया मुस्तकिल मजाजी ही पेशा वराना कामयाबी की कुंजी है। तलीमी शॉर्टकट सूदमंद साबित नहीं होता। तालिबात नस्म ज़ब्त और इखलाकी इताअत को तलीम का हिस्सा बनाएं। जबकि प्रिंसिपल रुबीना इनाम की तालिबात को इस अजीम पेशे में शमूलियत पर मुबारकबाद भी दी गई। जबकि इस मौके पर प्रोफेसर फारूक अफजल का ये कहना था कि अस्पताल के अंदर मरीजों के बढ़ते हुए बोझ के तनाजुर में अला तरबियत याफ्ता नर्सेज की तैयारी नागज़ीर है। इस मकसद के लिए एक जामिया और मजबूत प्रोग्राम तरतीब देना होगा ताकि हर मरीज को मियारी तिबी खिदमात फराहम की जा सके। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल। रवां साल 45,44,000 से ज़ायद अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 67,51,000 से ज़ायद चालान, 4 अरब रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब ट्रैफिक पुलिस जो है वो कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशिश है। रवां साल के दौरान 40 ज़्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 67,51,000 ज्यादा चलान और 4 अरब रुपए के जो जुर्माने हैं वो किए गए। दुमा छोड़ने वाली 2,45,000 गाड़ियों के चलान किए गए। 22,000 थानों में इनको बंद किया गया। 209 के फिटनेस सर्टिफिकेट जब्त किए गए। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अजीब पंजाब कहना है कि जारी हैं। अजीब पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस के 127 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में शहरियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रैफिक कानून की नादहिंदगान से रिकवरी के लिए मौसमी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वजह से मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं जो कि ट्रैफिक चालानों की नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रही है। जी, आपका शुक्रिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बहाल होने वाली MPS सुमैरा अहमद के एजाज़ में तकरीब। सुमैरा अहमद की रुकन पंजाब असम्बली बनने के बाद IPP सेक्रेटरी आमद सूबाई रहनुमाओं से मुलाकात की। IPP अहदेदारान की जानिब से MPS सुमैरा अहमद का भरपूर इस्तकबाल किया गया, गुलदस्ता पेश किया गया। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बहाल होने वाली MPS सुमैरा अहमद के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सुमैरा अहमद की रुकन पंजाब असम्बली बनने के बाद IPP सेक्रेटेरिएट आमद हुई, जबकि सूबाई रहनुमाओं से मुलाकात हुई। जबकि सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान
सूबाई जनरल सेक्रेटरी और MPA शेर सिद्दीकी ने खुशामदीद कहा, जबकि सदर IPP वुमेन विंग पंजाब तस्नीम खातवानी, सदर IPP लाहौर मलिक जमान नसीम ने खैर मकदम किया, जबकि सदर शोबा ख्वातीन लाहौर डॉक्टर जोहरिया सरवदी और दीगर ने जो है उनको खैर मकदम किया, जबकि जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग लाहौर मुस्तबिंदा ने भी खैर मकदम किया, जबकि IPP अहदेदारान की जानिब से MPA सुमेरा अहमद की भरपूर इस्तकबाल किया गया, जबकि सुमेरा अहमद को बतौर रुकन असम्बली आमद से पार्टी के पार्लिमानी सियासत मजबूत हुई है। ये कहना था इस मौका पर राना नज़ीर अहमद का, जबकि शेर सिद्दीकी बोले कि इनके इजाफे से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी असम्बली में फिर भरपूर किरदार अदा करेगी। सदर IPP अब्दुल रहीम खान की ज़ेर क़यादत मुल्क की तामीर तरक्की में हिस्सा डालेंगे। आपका शुक्रिया हमजा। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत से NA 119 की लीगी ख़वातीन की मुलाकात, धीरानी प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत, हिम्मत कार्ड और दीगर हुकूमती फलाही इक़दामात को सराहा गया। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामिया। जी बिल्कुल, पार्लिमानी सेक्रेटरी इब्राहिम माहौलियात व जंगलात कमल लियाकत एडवोकेट का हल्का NA 119 की लीगी ख़वातीन के साथ मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से धीरानी प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत, हिम्मत कार्ड और दीगर हुकूमती फलाही इक़दामात को सराहा गया। यूनियन काउंसिल की सदर और ख़वातीन कोऑर्डिनेटर ने भी शिरकत की। मुलाकात में फरजाना मुनीर, शहजादी तारिक, फाखरा वकार, नाजिर शफीक, नाहिद बेगम, साजदा, रेहाना, रजिया समेत दीगर ख़वातीन ने भी शिरकत की। जी आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत बदली तो इम्तिहानात से मुतल्लिक फ़ैसला भी तब्दील हो गया। पंजाब में तालीम के शोबे में एक और बड़ा फ़ैसला, 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला बहाल किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास, तालीमी इस्लाहात के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। वज़ीर तालीम का कहना था कि ग्रेड 8 के बोर्ड इम्तहानात दोबारा पेक्टा के तहत लिए जाएंगे और आइंदा 30 दिनों में इसका लाहे अमल तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 5वीं, 6वीं और 7वीं जमातों के लिए इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की गई है। ये टेस्ट तलबा और साथिया की कारकर्दगी जाँचने के लिए मददगार होंगे। असेसमेंट सिस्टम को शफाफ और काबिल अमल बनाने के लिए 1 माह में जामे तरीकाकार तैयार किया जाएगा। इजलास में मैट्रिक टेक के मज़ामीन को वीडियो फॉर्मेट में तब्दील करने पर भी गौर किया गया। असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनर्स का इंतखाब उनकी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने हिदायत की कि आइंदा साल के लिए दरसी कुतब की बरवक्त प्रिंटिंग और तरसील को यकीनी बनाने के लिए अभी से काम का आगाज किया जाए। इजलास में मिडिल क्लासेस में ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पंजाब में किए गए ये फैसले न सिर्फ तलबा के मुस्तकबिल को संवारेंगे बल्कि निज़ाम तालीम में बेहतरी की नई राहें भी खोलेंगे। आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। फिलवक्त इतना ही।